I wish you young people will be gripped early in life that God's got a plan for your life. और मैं चाहता हूं कि जो जवान लोग हैं वो परमेश्वर के जो है पंजों में आ जाएं और परमेश्वर ने उनके लिए योजना बना रखा है. I don't know how to convince you, but before you were born, God knew that one day you would accept Christ. और आपके जन्म लेने से पहले परमेश्वर जानता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे. And He had made a plan for you from that day how you should live. और उसने उसी समय आपके प्रति योजना बनाया कि आपको किस प्रकार का जीवन जीना है. So ask the Lord this question. तो आप परमेश्वर से ये प्रश्न करें. The question Paul asked Jesus as soon as he saw him on the Damascus road. और जैसे ही प्रेरित पौलुस ने दमस्कस के सड़क पर जो है सड़क के किनारे प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाया, उस समय जो प्रश्न किया, One question. एक ही प्रश्न, Lord, what will you have me to do? और तुझे मुझसे क्या काम है प्रभु. I want to ask the Lord that question every day in my spirit, even if I don't say it with my words. मैं अपने मुंह से ना बोलूं तो भी मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं कि परमेश्वर तुझे मुझसे क्या काम है. How many of you will have that spirit आप में से कितने लोगों के अंदर ये प्रश्न है gripped in your heart and say, Lord, what do you want me to do? और आपके हृदय के अंदर कितने लोगों के अंदर ये प्रश्न है कि परमेश्वर तू क्या चाहता है मैं करूं. I can make a plan for my life. It will not even be 1% as good as the plan you make for my life. हाँ, मैं अपने जीवन के लिए योजना बना सकता हूँ, लेकिन वो 1% भी जो आपकी योजना है उसके सामने नहीं अच्छा है. So I showed you one verse. मैंने एक वचन सुना There's है. another verse in the Old Testament which also taught me that. और पुराने नियम में भी एक वही वचन है. Psalm 139 भजन संहिता 139 and verse 16. उसका 16वां वचन. It's talking about in my mother's womb. David says, you knew me. यहाँ पे दिखेगा दावीद ने बताया कि तूने जो है मेरे माँ के मुंह कोख में रचाया करके. Verse 13, you did form my inward parts and you wove me in my mother's womb. वहाँ पे लिखा है कि तूने जो है मुझे माता के गर्भ में रचा है करके 13 में. Okay, then in 16, और 16 में लिखा है, when I was not even formed inside my mother's womb, your eyes saw my unformed substance. वहाँ पे लिखा हुआ कि तेरी आंखों ने मेरी बेडोल तत्व को देखा और मेरे संग. And that means I'm not fully formed as a baby yet. इसका मतलब यह है कि मैं अभी तक पूरा बच्चा भी नहीं बना. Think of this, all of you think of this. आप लोग सब सोचें. Think back to the time when you were in your mother's womb. सोचिएगा जब आप अपने माँ के कोख में थे, Not even formed properly. आप पूर्ण तौर से बने भी नहीं थे. And God saw you there. परमेश्वर ने आपको देखा. My parents never had any children for 5 years. और आपके जो माता पिता हैं उनको 5 साल तक कोई बच्चे नहीं थे. They prayed and prayed. उन्होंने प्रार्थना किया लगातार. And then God formed me inside my mother's womb. और उसके बाद आपको जो है आपकी माता के कोख में परमेश्वर ने रचा. And that time, उस समय God saw me. परमेश्वर ने मुझे देखा. And in His book in heaven, all the days for my life that were ordained for me were written down. और जितने दिन इनके लिए रखे गए हैं वो सब उन्होंने अपने स्वर्ग में किताब में लिखा. Before my first day started on earth. और इस धरती पे पहले दिन आरंभ होने से पहले, Before I was born. और जन्म लेने से पहले, To be born on this date. इस तारीख को जन्म लेंगे. Every day. हर दिन. I don't know how I'm going to live, how long I'm going to live. मैं नहीं जानता कि कितने दिन तक मैं जीवित रहूंगा. I'm very thankful that He's given me help to live up to this day, to be able to travel so freely. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इतने समय तक परमेश्वर ने जो है मुझे इतना सफर करता हूं फिर भी अच्छा I don't तंदुरुस्ती know, दिया. I've got no idea how many more days. और मैं नहीं जानता कि कितने और अधिक दिन, Because we live one day at a time. क्योंकि हम एक दिन में एक ही बार जीते And I हैं. say, Lord, but one thing I know. लेकिन एक बात जानता हूं, Before I was completely formed in my mother's womb, there was a book, which means in God's mind, every day was written down. और मेरे माँ के कोख में मेरे जन्म से पहले ही परमेश्वर ने अपने दिमाग में जो है मेरे बारे में सब कुछ लिख लिया. And I don't believe that I can die before that time. और मैं विश्वास नहीं करता कि उसकी योजनाओं से पूरा होने से पहले मैं मरूंगा करके. No sickness, no accident, nothing can take me before that time. और कोई बीमारी या कोई दुर्घटना उस समय से पहले मुझे नहीं ले सकता. I'm saying this for you also. You must also believe it. और आपको भी विश्वास करना चाहिए. ये मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ. What I'm applying to myself is for you too. और जो मैं अपने जीवन में प्रयोजन में लाता हूँ वो आपके लिए भी है. And I believe that nobody can
kill me before God's time. और परमेश्वर के समय से पूर्व कोई मुझे मार भी नहीं सकता। If I'm killed for preaching the gospel, I think that's the greatest honor God can give me. और प्रचार करने के लिए अगर जो कोई मारते हैं तो वो सबसे बड़ा सम्मान की बात But होगा। even that cannot happen till God's time. और वो भी परमेश्वर के समय से पूर्व नहीं हो सकता। You know how many times they tried to kill Jesus? हाँ, प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए कितने बार उन लोगों ने कोशिश की। First sermon in Nazareth, they took him to a cliff to throw him down. और पहले प्रचार में ही उनको जो है ऊंचे स्थान पे लेकर गए कि ताकि वहां से उठा के फेंके। In John 7, they sent the soldiers to capture him. और यूहन्ना 7 में जो है सैनिकों को भेजा कि उसको बंधुआ बनाया When he was जाए। on the lake, the devil sent a storm to drown that ship. और जब वो नदी से boat. और जब वो समुद्र से होकर जा रहे थे उस समय जो शैतान ने जो है पत्थर फेंका कि वो जहाज को गिरा दे। But it could not happen. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। Always it is written, his hour had not yet come. और हमेशा ये लिखा है कि उसका समय पूरा नहीं हुआ। Not the soldiers were not strong enough. ऐसा नहीं कि वो जो सैनिक है वो मजबूत ताकतवर नहीं है, Only one reason. केवल एक ही समय His hour had not yet कि उसका come. समय पूरा नहीं हुआ। Isn't it a wonderful thing to know क्या ये that? बहुत ही खूबसूरत बात नहीं है? He got this sickness, but he lived with it for 20 years because his hour had not yet come. हाँ, वो बीमार हुए लेकिन वो 20 साल और जीवित रहे क्योंकि उनका समय पूरा नहीं हुआ। Doctors only gave him 6 months, but his hour had not yet come. डॉक्टरों ने कहा 6 महीने, लेकिन उसका समय नहीं हुआ अभी। These people tried to harm him because he's preaching the gospel, but his hour had not yet come. हाँ, लोग उसको जो है उसको परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, लेकिन उसका समय पूरा नहीं हुआ। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? It's a wonderful thing when your only aim in life is to do the will of God. और ये बहुत ही खूबसूरत बात है अगर जो आपका See- पवित्र इच्छा है कि उसकी इच्छा को पूरा करना। If your aim in life is money अगर जो आपका लक्ष्य है दौलत and comfort और आराम or honor, या सम्मान, or you got plans which are you've already made up for your life, और आपने कुछ योजना बनाया हुआ है अपने जीवन के प्रति, and you're not surrendered all of your body to Him, और आपने सब कुछ जो है उसके सामने समर्पण नहीं किया, all your future to Him, और अपने भविष्य को समर्पण नहीं किया, you got other plans other than the will of God, और परमेश्वर की योजना के विपरीत आपका कुछ और योजना है, everything you say, Lord, if it's convenient, I'll do your will, और आप बोलते हैं कि अगर जो ये सब सही तरीके से आसानी से हो जाए तो मैं सब तेरे हाथों में सौंपता हूँ, then I cannot say what will happen to you. तो मैं नहीं कह सकता कि आपका क्या होगा। But if you can stand before God and say, अगर जो आप परमेश्वर के सामने खड़े होकर कहते हैं Lord, every area of my life is yours, कि मेरे जीवन का हर स्थान जो है आपके लिए and है to the best of my knowledge, और मेरी जानकारी के अनुसार, and I have no ambition but to do your will on earth, और मेरी और कुछ और इच्छा नहीं है, केवल तेरी योजना पूरा करना, and I don't want to live one single day on earth once I finished your will. और तेरी योजना पूरा होने के बाद मैं एक दिन भी आगे नहीं जीना चाहता हूँ। Jesus was ready to go at 33 and a half. और प्रभु यीशु मसीह तैयार थे 33.5 साल में ऊपर जाने के लिए, That's not a long life. और वो कोई लंबा आयु नहीं। But he said, I finished the work you gave me to do, John 17. और जो यूहन्ना 17 में जैसे लिखा है, जो पिता ने जो काम सौंपा वो पूरा हो गया और वो तैयार था। Paul was 67. He said, I finished the work, now I'm ready to go. और पौलुस जो है 67 का था, उसने बोला कि मैंने पूरा दौड़ किया और मैं तैयार हूँ। So, if I finished my work someday, और मैं अगर जो पूरा काम कर लूँ अपना, I don't want tubes here and there and all to extend my life after that and things to keep on pumping my heart with some machine. और मैं नहीं चाहता कि कोई मशीन मेरे हृदय को चलाए और मैं जीवित रहूं कुछ I say, दिनों। Lord, when my work is done, I want to go. और जैसे ही मेरा समय पूरा हो, मेरा काम पूरा हो, तो मैं जाना चाहता हूँ। You must be gripped with that. और आप इसको पकड़ के रखें। I pray that God will find many of you brothers and sisters in Maharashtra gripped with this. और इसी विचार के द्वारा परमेश्वर जो है आपको एकदम अपने मुट्ठी में कस के पकड़ ले, Lord, I've got only one life to live. कि परमेश्वर केवल एक ही जीवन है मेरे I सामने, don't want to miss your plan. और मैं आपकी इच्छा को जो है उससे चूकना नहीं चाहता हूँ। When I was a young Christian, जब आप जो है एक जवान मसीह थे, I read a poem which I never forgotten. और एक पोएम कविता इन्होंने पढ़ा, And I often used to say it to myself. और मैं अपने आप से ये कहता था, It goes something like this. वो इस प्रकार से है वो कविता, When I stand at the judgment seat of Christ one day, और जब मैं एक दिन प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रहूंगा, the Lord shows me His perfect plan for my life. और जो परमेश्वर की जो सिद्ध योजना मुझे जब दिखाए, And I compare that with how I lived. और उसके साथ जिस प्रकार से मैंने जीवन जिया है उसकी तुलना करूं तो He shows me a picture of what His plan would have been if I had obeyed Him 100%. अगर जो मैं प्रभु परमेश्वर को 100% कहना मानता तो उसकी योजना किस प्रकार की थी, And some other place along the way where I sought something else.
और कुछ जगहों में मैंने अपना ही कुछ कार्य किया, or I went after money somewhere, और मैं कहीं और गया, or married the wrong person, और या फिर गलत आदमी से मैंने or शादी went किया, to some place because I like to go there. और कुछ जगह में जाना चाहता था इसलिए चला गया। And the Lord shows me how I stopped and hindered His plan in so many places. और परमेश्वर मुझे दिखाता है कि किस प्रकार से कई जगह रुकावट आए And- और मेरी अपनी योजनाओं की वजह And से। at that time I discovered I can't live my life again और फिर मुझे लगा कि हाँ, मैंने खोजा कि अब मैं अपना जीवन नहीं जी सकता हूँ, because life is over. क्योंकि मेरा जीवन पूरा I'm हो at the चुका judgment seat of Christ now. और मैं इस समय जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने हूँ, I'll have such regret. और मुझे बहुत पश्चाताप हुआ, And I'll bow my head and say, Lord, I'm so sorry. और मैं अपना सर झुकाकर बोला कि प्रभु परमेश्वर मुझे माफ करो, What a wonderful life you could have produced through my life. और मेरे द्वारा तू बहुत ही खूबसूरत एक जीवन जो है ला सकता था। Instead, like a stupid fool, I thought I could plan my life better. लेकिन मैं एक बेवकूफ था जो कि अपना योजना बनाया कि मैं अपना जीवन और अच्छा बना सकूं। Lord, don't let that happen. परमेश्वर ऐसा ना होने दे। Of all the years that are left to me, I give it to you. हाँ, जो भी अब जीवन मेरा बचा हो मैं तेरे हाथों में देता हूँ, Fulfill your plan. तू अपनी योजना पूरा I want कर। to say that to every, even if you're 60, 70, 80 years old here, अगर जो आप यहाँ पे 60-70 साल के भी हो तो at least the rest of your life, कम से कम बचे हुए दिन, even if you've wasted all your life, हो सकता till है today, कि आज तक का दिन आपने बेकार किया हो, will you say, Lord, at least the rest of my life, I want to fulfill your plan. आप बोले कि कम से कम अब बचे हुए जो दिन है वो मैं आपकी योजना पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर। You know, it's like a man who's wasted all his money, but he's still got a little bit left. और ऐसा होगा कि एक व्यक्ति है जिसने सब कुछ अपना धन दौलत खराब कर दिया, उसको उड़ा दिया, Okay, लेकिन be थोड़ा care- सा बचा हुआ Be है, careful with the rest. और उससे उसको भी इस्तेमाल कर सकते And हैं। those of you young people who got your whole life in front of you, और जो जवान लोग जिनके सामने पूरा जीवन है, how blessed you are. वो कितने धन्य हैं आप लोग। I'll never forget the story of D.L. Moody, a great evangelist in America. और अमेरिका के एक बड़े ही सुसमाचार के मनादी करने वाले दास डीएल मूडी के बारे में मैं कभी भूल नहीं He सकता। went to a house meeting once. और एक बार वो एक घर में जो है मीटिंग के लिए गए, Somebody asked him how many people were saved. और उनसे पूछा कि कितने लोग यहाँ पे बचाए गए। Somebody asked Moody how many people were saved in the meeting. हाँ, किसी ने डीएल मूडी से पूछा कि कितने लोग बचे हैं यहाँ पे, उधार पाए। He said 3.5 people. उन्होंने बोला कि 3.5 लोग। He said, what do you mean? It's like half ticket, 3 adults and 1 child. तो उन्होंने पूछा कि इसका अर्थ क्या है, यानी कि 3 बड़े लोग और एक बच्चा? He says, no. उसने कहा नहीं, 3 children who got the full life ahead of him, 3 बच्चे हैं जिनकी पूरी जिंदगी बची हुई है, and 1 man who had already lived half his life for the world. और दूसरा एक व्यक्ति है जिसने आधा पूरा जिंदगी अपने लिए जी लिया। That man is half ticket because he's wasted half his life. तो वो आदमी जो है उसका आधा टिकट है, क्योंकि अपना पूरा आधा जिंदगी उसने खराब कर दिया। You say, what a way to think about it. देखिएगा किस तरह के लोग सोच सकते When a हैं। child is saved, it's like a full person. जब एक बच्चा उधार पाता है, इसका मतलब पूरा एक टिकट है। 40-year-old person is saved, good, but he's only got half of his life left. 40 साल का एक आदमी ने उधार पाया, लेकिन उसके पास सिर्फ आधा ही समय बचा है। That's why you young people are so fortunate. इसलिए जो जवान लोग हैं वो बहुत ही जो है अच्छे लोग हैं, मतलब That's- किस्मत अच्छा उनका। That's why I always prefer to speak to young people rather than older people. इसलिए मैं हमेशा जवानों से बात करना चाहता हूँ, Because बुजुर्गों से ज्यादा, I can change their whole life. क्योंकि मैं उनके पूरे जीवन को बदल डाल They सकता हूँ। haven't messed up their life yet by marrying the wrong person. और हो सकता है कि उन्होंने अपनी पूरा जिंदगी बेकार कर दिया हो गलत व्यक्ति से शादी Or करने gone के into a जरिए, wrong place. या फिर गलत जगह जाने की वजह से। Beginning. लेकिन शुरुआत में Maybe they're just finishing their education. हो सकता है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई का वहां पे And they're खत्म कर not लें, yet married. और अभी शादीशुदा नहीं हुए हो। What a wonderful time to start living for God. और कितना खूबसूरत समय है परमेश्वर के लिए जीना। You know, I spent 3 years in National Defense Academy, Khadakwasla, और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल में रहा, and then 1.5 years on the ship. और 1.5 साल तक मैं जहाज में था। In July 59, I got my stripe. I was a commissioned officer. और उसके बाद 1959 में स्ट्राइप मिला और कमीशन ऑफिसर बने। And the same month, और उसी महीने में Jesus came into my life. मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आए, I got 2 commissions that month. और उसी महीने मेरे को 2 कमीशन मिला। I'm so thankful. और मैं बहुत ही धन्यवाद। The month I started my career in the Navy, Jesus came into my life. और जिस महीने में मैंने अपना जो नेवी में अपना आरंभ किया जीवन को, उसी समय प्रभु यीशु I मसीह had मेरे just जीवन में आए। started my career,
और मैंने अपना जो करियर है वो आरंभ किया। I was not married, उस समय मैं शादीशुदा नहीं हूँ and God came into my life. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए। I'm so thankful. उसके लिए मैं बहुत So I धन्यवाद want to करता say to you young people, don't just play the fool like a lot of people today. हूँ। इसलिए जवानों को बताना चाहता हूँ कि जैसे बाकी लोग जो है अपना जिंदगी खराब कर रहे हैं वैसा ना करें, And seek to fulfill the will of God. और खोज करें और परमेश्वर की योजना को पूरा करें, Pray with all your heart that God will not let you miss His will, और प्रार्थना करें कि परमेश्वर की योजना को आप ना चूकें, that His plan for your life will be fulfilled. और उसने जो योजना आपके प्रति बनाया है वो पूरा हो। And that will be fulfilled if you spend your life studying God's word in your early और वो years. जब पूरा होगा जब आप परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, Cut out all that television viewing. और जो टीवी देखना है उसको छोड़ें, That's not so important. वो कोई प्रमुख बात नहीं है। Yeah, read the newspaper, you get the news. और अगर जो अखबार पढ़ेंगे तो आपको समाचार Or मिल जाएगा, you go on the internet, you see the news, that's enough. और समाचार इंटरनेट में मिल जाएगा, वो It काफी है। doesn't take you 5-10 minutes, that's it. केवल 5-10 मिनट लें और And then concentrate on studying the word. और उसके बाद परमेश्वर के वचन का अध्ययन See, करें। nowadays you can have the Bible on your cell phone also. और आजकल जो है मोबाइल के अंदर भी आपका बाइबल रह सकता है, We never had that privilege 55 years ago. और 55 साल पहले हमारे पास ऐसा सुविधाएं नहीं था। I'd keep a pocket New Testament in my pocket. और मैं अपनी जेब में जो है नया नियम And रखता था, I would read it when I'm waiting in a bus stand or anywhere. और जहाँ कहीं पे भी जैसे बस स्टैंड में मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ तो मैं पढ़ता था, Sitting in a bus, sitting in a train. और ट्रेन में बैठा हूँ या बस में बैठा हूँ तो मैं What a पढ़ता। lot of time we have. और कितना समय हमारे पास है। Like nowadays, a lot of people travel in the cars. You can listen to the Bible on their CD player. और बहुत सारे लोग कार में सफर करते हैं, वो बाइबल सीडी प्लेयर में लेके सुन सकते हैं। If you really concentrate on this, God can do a wonderful thing with your life. अगर जो आप अपना पूरा ध्यान इसमें लगा देंगे, केंद्रित करेंगे, तो परमेश्वर आपके द्वारा बहुत अद्भुत कार्य If करेगा। I had not studied the scripture in those first 7 years of after I got baptized, before I got married, I don't think I would have had any ministry at all. अगर जो मैंने अपने शुरुआत के 7 साल में वचन का अध्ययन सही तरीके से नहीं किया होता मेरी शादी होने से पहले, तो मैं नहीं सोचता कि आज मैं इतना अच्छा तरीके Study से the word of God, बोल सकता हूँ। day and night, study the word of God. परमेश्वर का जो वचन है उसका अध्ययन करें दिन और रात, Cut out useless things from your life. और जितने जो बेकार की चीजें उन सबको काट डालें, निकाल दे अपने जीवन से। You see, many people say, oh, God's given Brother Zach a gift. That's why he's able to do this ministry. कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ब्रदर भाई जैक को तो परमेश्वर ने ऐसा वरदान दिया हुआ है इसलिए वो प्रचार करते That हैं। is true, but he also saw me studying the Bible day and night for 7 years before that. और वो तो सही है, सच्चाई है, लेकिन उसने 7 साल जो है परमेश्वर के वचन के अध्ययन करने में भी समय बिताया है। Every day, हर रोज get up in the morning, सुबह सुबह study उठे the Bible. Before going to bed at night, study the Bible. और वचन का अध्ययन करें, और रात को बिस्तर में जाने से पहले The वचन का result अध्ययन is, I करें, began to understand God's ways. और परमेश्वर के मार्गों को समझें, And I could understand God's plan. और इस प्रकार से परमेश्वर के योजनाओं को समझ I सकते could हैं। distinguish God's voice from other voices. और इस प्रकार से हम परमेश्वर के शब्द और दूसरे शब्दों को हम पहचान कर सकते I हैं। find so many young people today who are so ignorant of the scriptures. और आज मैं बहुत सारे जवानों को देखता हूं जो कि बिल्कुल परमेश्वर के वचन से अज्ञान है। So don't have any regret when Christ comes again. और जब परमेश्वर आए उस समय जो है अपने आप को गलानी महसूस ना Be करें। open yourself to the Holy Spirit. आप परमेश्वर And पवित्र say, आत्मा Lord, के सामने अपने आप को खोल every दें। area of my life, I want you to come and fill me. मैं अपने जीवन के हर एक जगहों को चाहता हूं कि परमेश्वर की आत्मा भर दे।